Welcome back, learners. Today in this video, we will continue exercise 8.1, which is based on angle sum property of a triangle. So question number 3 is, the measure of two angles of a triangle are 78 degree and 62 degree. So I have drawn a triangle ABC in which I have marked two angles as 78 and 62 as they are given. Find the measure of the third angle. We need to find the third angle. हमें किसी triangle के दो angles दिए हुए हैं, तीसरा angle हमें उसका find करना है. So let the given angles, angle 1 is 78 and angle 2 is 62 degree. Then angle 3 we need to find. So by angle sum property of a triangle, that means the addition of three angles of the triangle is 180 degree. Angle 1 plus 2 plus 3 is equal to 180 degree. Substituting the value of angle 1 as 78 and angle 2 as 62 degree, angle 3 will remain as it is. 78 plus 62 आपको 140 degree देगा, plus angle 3 140 degree एडिशन में है, दूसरे तरफ हम उसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो माइनस 140 डिग्री हो जाएगा. दिस विल गिव यू एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, दैट इज 40 डिग्री. हेंस द थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 40 डिग्री. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 says the angles of a triangle are in the ratio 1:3:5. Find the measures of each one of the angles. So since the angles are given in the ratio 1:3:5, let us consider the common factor as x. Then the angles will be 1x or x, 3x and 5x. Now again, by angle sum property of a triangle, the addition of these three angles of the triangle or sum will give you 180 degree. इन तीनों का sum आपको 180 degree के equal मिलेगा. This is the angle sum property of a triangle. Now x plus 3x plus 5x, ये तीनों x की terms like terms हैं. So we will just add the numbers in front of x. x के आगे 1 है, यहाँ x के आगे plus 3 है, थर्ड एंगल में x के आगे plus 5 है. तो 1 plus 3 4, 4 plus 5 will give you 9x. 9x is equals to 180 degree. 9 मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरे साइड डिवीजन में जाएगा. 180 divided by 9 will give you 20 degree. This is the value of x. तो हमारा फर्स्ट एंगल जो x था वो 20 डिग्री है. Let us find 3x and 5x. हमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी. So 3x means 3 into x or 3 into 20. That will give you 60 degree. 5x will be 5 into 20. That is 100 degree. So the three angles are 20 degree, 60 degree and 100 degree. Moving on to question number 5. Question number 5 is, one of the acute angles of a right triangle is 42 degree. See, यहाँ पर हमें right triangle बोला है. Right triangle मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, right? So किसी right angle triangle के एक acute angle, इसका एक acute angle आपको 42 डिग्री दिया है. I have made a triangle ABC for your convenience. इसमें एंगल B को 90 डिग्री मार्क किया है और एक acute angle आपको 42 डिग्री given है. So let angle 1 is equals to 90 degree. One of the acute angles, let angle 2 is equals to 42 degree. Then we need to find angle 3. Now we will be following two methods for this. पहला मेथड ये होगा, आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के एंगल 3 फाइंड कर लें. So by method 1, by angle sum property of a triangle, angle 1 plus 2 plus 3 is equals to 180 degree. एंगल 1 हमने 90 डिग्री लिया था, सब्स्टिट्यूट किया उसे. एंगल 2 की जगह 42 डिग्री सब्स्टिट्यूट किया है और एंगल 3 हमें फाइंड करना है.
90 plus 42 will give you 132 degree. 132 नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसपोज होगा दूसरे साइड, तो माइनस 132 हो जाएगा. एंगल 3 विल बी 180 माइनस 132 डिग्री, दैट इज 48 डिग्री. ये फर्स्ट मेथड था जिसमें हमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल यूज किया. नाउ इफ यू रिमेम्बर, हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट में एक और नोट पढ़ा था. इन दैट नोट वी स्टडीड दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वाला एंगल छोड़कर बाकी के दो जो एक्यूट एंगल्स बनते हैं उनका सम 90 डिग्री होता है. So that was a result or a conclusion that we derived in the introduction part of this chapter. आप method 2 में इसको भी use कर सकते हैं. So coming back to the diagram, हमारे पास में acute angle है angle A, that was angle 3, and angle C. Angle A और angle C का sum हो जाएगा 90 degree. So we can write angle 2 plus angle 3 or angle A plus angle C is equals to 90 डिग्री. एंगल C की जगह हम 42 डिग्री रखेंगे और एंगल 2 हमने उसे लिया है तो उसकी जगह 42 डिग्री रखा है. एंगल C को एज इट इज रखा है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है. तो इन दोनों का सम हमें 90 डिग्री है मिला हुआ है. 42 डिग्री को हम ट्रांसपोज करेंगे, 90 माइनस 42 डिग्री हो जाएगा. एंगल C की वैल्यू आ जाएगी 48 डिग्री. Hence the other acute angle is 48 degree. Coming up to question number 6. The acute angle of a right angle triangle, the acute angles of the right angle triangle are in the ratio 2:3. यहाँ पे हमें right angle triangle के बारे में बोल रहा है और उसके acute angles के बारे में बता रहा है. उनका रेशियो कितना दिया है? 2:3 दिया हुआ है. तो हम क्या लिखें? गिवन में हमारे पास में आएगा गिवन द एक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3. जब भी हमें रेशियो दिया रहता है हम एक कॉमन फैक्टर कंसिडर करते हैं. लेट एक्स बी द कॉमन फैक्टर. इसलिए दोनों एक्यूट एंगल्स जो रेशियो में दिए हैं एक्यूट एंगल्स के मेजर हो जाएंगे 2x एंड 3x. नाउ क्वेश्चन में वापस आए तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मेजर ऑफ दीज एंगल्स. इन दोनों एंगल्स का मेजर हमको फाइंड करना है. तो कमिंग अप टू द कंक्लूजन पार्ट जो हमने स्टडी किया है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द सम ऑफ टू एक्यूट एंगल्स इज 90 डिग्री. अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम सॉल्व करके आए हैं. तो एक्यूट एंगल्स हमारे पास में यहाँ पर 2x और 3x है. तो 2x प्लस 3x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी? 90 डिग्री. 2x प्लस 3x, 2 प्लस 3 विल गिव यू 5x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. 5 मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरे साइड डिवीजन में चला जाएगा. 90 डिवाइडेड बाय 5 विल गिव यू द वैल्यू ऑफ x एज 18. अब देखिए ये हमें x की वैल्यू मिली है. हमारे पास एक्यूट एंगल्स जो थे वो 2x और 3x थे, इसलिए हमें 2x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. 2x मीन्स 2 इंटू एक्स और 2 इंटू 18. x की वैल्यू 18 सब्स्टिट्यूट की है. 2 इंटू 18 विल गिव यू 36. सिमिलरली 3x, 3 into x or 3 into 18 will give you 54. Hence, the two acute angles are 36 degree and 54 degree. Question number 7 is one of the base angles of an isosceles triangle is 72 degree. Find the vertical angle. यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं. आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं और उन दो इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल्स आते हैं वो भी इक्वल होते हैं. तो यहाँ पर जब हमें बेस एंगल बोल रहा है मतलब बेस एंगल दोनों इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के. तो हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ किया ABC. इसमें बेस साइड पे दो एंगल बन रहे हैं. एंगल B जो 72 डिग्री हमने कंसिडर किया है. एक और बेस एंगल होगा एंगल C, वो भी 72 डिग्री के इक्वल होगा. नाउ we have been given one base angle of an isosceles triangle. Let angle B is equal to 72 degree. But हमने पढ़ा है कि दोनों बेस एंगल किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर ट्राइंगल, पर्टिकुलरली अबाउट आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसके दोनों बेस एंगल्स इक्वल होते हैं. इसलिए एंगल C एंड एंगल B
they both will be equal to 72 degree. We need to find the vertical angle. Vertical angle मतलब जो टॉप पे आता है, बेस साइड के अपोजिट में या फिर बेस एंगल के से बचा हुआ जो थर्ड एंगल होता है उसे वर्टिकल एंगल बोलते हैं. नाउ इन ट्राइंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, हमें दो एंगल्स मालूम है, थर्ड एंगल फाइंड करना है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं. एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री. B और C की वैल्यू 72 डिग्री के इक्वल है, तो उसे हमने सब्स्टिट्यूट किया है. 72 डिग्री प्लस 72 डिग्री विल गिव यू 144 डिग्री. 144 एडिशन में है, नेक्स्ट स्टेप में दूसरे साइड में ट्रांसपोज होगा, तो माइनस 144 डिग्री हो जाएगा. Angle A will be equal to 180 degree minus 144 degree, that is 36 degree. Hence the vertical angle is 36 degree. Coming up to question number 8, each of the two angles of an isosceles triangle is 4 times the third angle. Each of the two angles, two equal angles जिसकी हम बात कर रहे हैं, मतलब दो बेस एंगल्स जो इक्वल होते हैं वो. यहाँ पर हमने वापस से एंगल B और एंगल C लिया है, इन दोनों एंगल्स की बात कर रहे हैं हम. So each of the two angles is 4 times the third angle. थर्ड एंगल कौन है यहाँ पर? A. So since angle B and angle C are equal, also it is saying angle B and angle C are 4 times, मतलब 4 into 4 times of the third angle. यहाँ थर्ड एंगल हमारे पास में A बचा है, 4 टाइम्स ऑफ एंगल A. ये हमें मिल गया B और C की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एंगल A. तो हमें एंगल्स फाइंड करना है. फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. ट्राइंगल के अंदर हमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं. इन ट्राइंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल आई कैन राइट एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल A को एंगल A ही लिखें. एंगल B जो है और एंगल C जो है वो 4 टाइम्स ऑफ एंगल A के इक्वल है, तो हम B को भी 4 टाइम्स ऑफ एंगल A लिखेंगे, एंगल C को भी 4 टाइम्स ऑफ एंगल A लिखेंगे. यहाँ आप देखें तीनों टर्म्स जो हैं वो एंगल A के फॉर्म में हैं, तो इनके आगे के जो नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, हम केवल उनको ऐड करेंगे. 1 प्लस 4 5 प्लस 4 9. So angle A plus 4 angle A plus 4 angle A will give you 9 angle A. That is equal to 180. 9 मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरी तरफ डिवीजन में चला जाएगा, तो 1 एंगल A की वैल्यू हो जाएगी 180 डिवाइडेड बाय 9 और 20 डिग्री. ये वैल्यू आई है एंगल A की. एंगल B और एंगल C जो है 4 टाइम्स ऑफ एंगल A है, तो एंगल B की वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ एंगल A. 4 इंटू एंगल A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 20 डिग्री. 4 इंटू 20 will give you 80 degree. Now angle B and angle C were equal, therefore value of angle B and angle C is 80 degree. So that's all for this video. Thank you for watching.